بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس شاندار بنگلے کے شاندار باتھ روم میں کھڑی تھی، آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کبھی اتنا مہنگا جوڑا نہیں پہنا تھا اور اتنے اچھے سے تیار نہیں ہوئی تھی، اتنی پیاری خوشبو نہیں لگائی تھی اور حیران تھی کہ یہ مجھ پر آج اتنا کرم کیسے ہو گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ میں سب کے قابل نہیں تھی، جو میں کر رہی تھی کہیں نہ کہیں وہ غلط تھا، لیکن کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا غلط کرنے سے بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بھی مجبور تھی، لیکن آج خود کو اتنے خوبصورت لباس میں دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باتھ روم سے نکل کے کمرے میں جانے کا حکم مل گیا۔ یہ کمرہ کسی کا بیڈ روم تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے آکائی آ گئی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے بعد میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی اور آنکھوں میں خوف ابھرا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے ایک غلط فیصلے نے کچھ صحیح کرنے کے بجائے جو تھوڑا بہت صحیح تھا اس کو بھی غلط کر دیا تھا۔ پورے 15 منٹ کے بعد میں ایک اور کمرے میں موجود تھی، جہاں میرے سامنے 4 لمبے قد کے آدمی کھڑے تھے، جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم میرا نام میمونہ ہے اور میری کہانی سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ شاید یہ میری زندگی کی آخری کہانی ہے۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام ماریا تھا اور ہم دونوں بچپن سے ساتھ رہتے تھے۔ ماریا اور میں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور ہمارا دن صبح سے شام تک کاموں میں گزرتا تھا۔ زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس لیے حوصلہ برقرار رہتا اور ماریا ہنسمکھ اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ سب کہتے رہے کہ ماریا نے کسی غریب سے شادی کی ہوگی، کیونکہ ہماری دنیا میں خوش نصیبی کمی آتی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے اور ماریا کی کوئی خبر نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کی زندگی بہتر ہو گئی ہو یا پھر وہ ہماری طرح مشکلوں میں گھری ہو۔ لیکن ایک دن جب میں بازار میں سودا لینے گئی تو اچانک میری نظر ایک شاندار گاڑی پر پڑی۔ گاڑی کے قریب ایک خاتون کھڑی تھی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور وہ ماریا تھی۔ لیکن یہ ماریا وہ نہیں لگتی تھی جسے میں جانتی تھی۔ زیورات سے آراستہ تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی رئیس خاندان کی بہو ہو۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ماریا واقعی بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ دل میں کئی سوالات اٹھے، لیکن میں نے ہمت کر کے اسے پکارا، ماریا۔ خوش قسمتی سے اس نے مجھے فوراً پہچان لیا اور مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ماریا، تمہارے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں میمونہ، قسمت ہمیشہ ایک جیسی تھوڑی رہتی ہے۔ میں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، لیکن میری قسمت تو ابھی تک وہی کی وہی ہے۔ ماریا نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میمونہ، یہ میرے گھر کا پتہ ہے اور تم ضرور آنا۔ میں تمہارے لیے کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ دوں گی۔ کب تک دوسروں کے گھروں میں کام کرتی رہو گی؟ ماریا کے الفاظ نے میرے دل کو ایک نئی امید دی۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ دیا اور جاتے ہوئے کہا کہ کل ہی آ جانا، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ میرے دل میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ماریا نے میری زندگی بدلنے کا وعدہ کیا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے ہی دن اس کے گھر جاؤں گی، کیونکہ ویسے بھی اس دنیا میں میرا کوئی اور نہیں تھا جو میرا سہارا بن سکے۔ یہ سوچ کر میں رات بھر خوشی کے مارے سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنا سامان باندھا اور ماریا کے بتائے پتے کی طرف چل پڑی۔ جب میں ماریا کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت امیر ہو چکی ہے، لیکن یہ سب دیکھنے کا خیال میرے دل میں بے شمار سوالات پیدا کر رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ماریا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ قیمتی لباس میں ملبوس، زیورات سے سجی ہوئی اور چہرے پر وہی اعتماد بھری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی جو میں نے کبھی اس کے خوابوں میں دیکھی تھی۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور گلے لگا لیا، جیسے ہم دونوں بچپن کی دوست تھی اور یہ سب دولت اور حیثیت ہماری دوستی کے بیچ کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور میں حیرت سے اس کے شاندار گھر کو دیکھتی رہ گئی۔ دیواریں کسی محل کی طرح سجی ہوئی تھی، فرش ایسا چمکتا تھا کہ اپنا عکس دکھائے۔ ہر چیز اتنی قیمتی تھی کہ لگتا تھا جیسے یہ کسی خواب کا حصہ ہو۔
मारिया ने मुझे सोफे पर बिठाया और कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। चंद लम्हों बाद वो तरह और मशरूबात लेकर आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी मेहमान नवाजी नहीं देखी थी। खाने के दौरान वो मुझसे पूछने लगी, अभी भी वहीं रहती हो? मैंने सर झुकाकर जवाब दिया कि हाँ, वही किराए का कमरा और वही दूसरों के घरों में काम। मारिया ने गहरी सांस ली और कहा कि मैमूना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी होगी। तुम जैसी मेहनती और मुखलिस लड़की को इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मैंने इर्द गिर्द देखते हुए कहा कि मारिया, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी ज़िंदगी तो जैसे बदल गई है। वो मुस्कुराई और बोली, किस्मत, मैमूना, और हाँ, थोड़ी मेहनत भी। मैं उसकी बातों के दौरान उसके शौहर के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। आखिर वो कौन था जिसने मारिया को इस मुकाम तक पहुंचाया? हिम्मत करते हुए मैंने पूछा, मारिया, तुम्हारे शौहर कैसे हैं और वो कहाँ हैं? मारिया ने सुकून से जवाब दिया, वो ज़्यादातर घर पर नहीं होते। उनका कारोबार बाहर के मुल्क में है और वो ज़्यादा वक्त वहीं गुजारते हैं। मैं बाहर के मुल्क में है और वो ज़्यादा वक्त वहीं गुजारते हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या अच्छा शौहर है जो मारिया का इतना ख्याल रखता है। फिर हिचकिचाते हुए कहा कि मारिया, क्या तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढ सकती हो? मैं भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती हूँ। मारिया ने चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे वो कुछ सोच रही हो, और फिर बोली कि मैमूना, मैं तुम्हें अपने घर में काम पर रख सकती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मारिया, तुम्हारा मतलब है कि मैं यहाँ नौकरानी का काम करूँ? मारिया ने नरमी से कहा, देखो मैमूना, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और इसलिए चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। यहाँ काम ज़्यादा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ खाना बनाने का काम संभालो। मैं हैरत और थोड़ी मायूसी के साथ बोली, लेकिन मारिया, मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए कुछ बेहतर सोचोगी। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, मेरे पास यही बेहतर काम है। मैं तुम्हें अपने शौहर के ऑफिस में तो काम नहीं दिलवा सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये काम करो। मैं खामोश हो गई। फिर पूछा कि पैसे कितने दोगी? तो मारिया हंसते हुए बोली, तुम जो भी मांगो मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम खुद ही बताओ। मारिया ने कहा कि 40,000 महीना दूंगी और तुम्हें घर के पिछले हिस्से में एक कमरा भी मिलेगा। वहाँ तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी। ये सुनकर मेरे दिल में सुकून सा आ गया। 40,000 की रकम मेरी सोच से कहीं ज्यादा थी और रहने की जगह भी। ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा था। मैंने फौरन हामी भर ली। मैंने सोचा कि गरीबों के पास ज्यादा सोचने का वक्त कहाँ होता है। मारिया ने मेरे लिए वाकई अच्छा सोचा था। यूं मैंने मारिया के घर काम शुरू कर दिया और मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया हो। मारिया ने मेरे लिए जो भी किया वो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा था। इसके बाद से मेरी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां थी। मारिया ने मुझसे कहा कि उसके घर में ज्यादा काम नहीं होता। घर की सफाई के लिए पहले से नौकर मौजूद थे और मेरा काम बस खाने पकाने तक महदूद था। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया, मुझे अंदाजा हुआ कि इस घर में काम से ज्यादा आने जाने वालों की रौनक रहती है। मारिया ने अपने इर्द गिर्द कई लोगों से दोस्ती कर रखी थी जो तकरीबन रोज ही उससे मिलने आते। उनके सामने मारिया हमेशा मेरा तारुफ नौकरानी के तौर पर कराती और हर बार ये सुनकर दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। एक दिन जब मैं किचन में काम खत्म करने के बाद थकी हुई एक कोने में बैठी थी, मारिया मेरे पास आई और बोली, मैमूना, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, सब ठीक है। मारिया ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि जब मैं लोगों के सामने तुम्हें नौकरानी कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैमूना, तुम्हें समझना होगा कि ये सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। अगर मैं सबको बताऊं कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो तो लोग सवाल करेंगे कि दोस्त है तो नौकरानी क्यों है। और अगर ये सवाल उठे तो मेरी इज्जत पर हर्फ आएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया है। मैं खामोश रही। दिल में एक भारीपन महसूस हुआ। मारिया ने अपनी बात जारी रखी, देखो, हम गरीब लोग हैं और मैंने किसी तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचकर भी मुझे हर कदम पर मोहतात रहना पड़ता है। मैंने उसकी बातों की तायद करते हुए कहा, हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझती हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे बहुत बुरा लगा था। मारिया के अल्फाज, चाहे वो अपनी मजबूरी की वजह से कह रही थी, मेरे दिल पर गहरी चोट करते थे। उस घर में एक और चीज़ थी जो मेरी तवज्जो बार बार अपनी तरफ खींचती थी। दीवारों पर एक बूढ़े आदमी की बड़ी बड़ी तस्वीरें। ये तस्वीरें घर के हर कमरे में मौजूद थी और
नहायत इज्जत के साथ दीवारों पर लगाई गई थी। मुझे रोज़ उन तस्वीरों की सफाई करने का कहा जाता और दिल में सवाल उठता कि ये कौन है। मुझे रोज़ उन तस्वीरों की सफाई करने का कहा जाता और दिल में सवाल उठता कि ये कौन है जिसकी यादें इस घर में इस कदर महफूज हैं। एक दिन सफाई के दौरान मैंने अपनी हिम्मत जमा की और मारिया से पूछा, मारिया, ये बूढ़े आदमी कौन है? मेरा सवाल सुनकर मारिया के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन सी नजर आई, लेकिन फिर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। ये मेरे ससुर हैं, उसने बताया। मेरे शौहर को अपने बाबा से बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने उनकी तस्वीरें पूरे घर में लगवा रखी हैं। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, इसलिए इन तस्वीरों का इतना एहतराम करना पड़ता है। मारिया ने संजीदगी से जवाब दिया कि हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे घर का एक हिस्सा है। ये सुनकर मैंने एक और सवाल कर दिया, और तुम्हारे शौहर, उनकी कोई तस्वीर क्यों नहीं है यहाँ? मेरा सवाल सुनकर मारिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी छा गई। वो गुस्से से बोली कि तुम्हें ये सब देखकर क्या करना है? बस ये जानना चाहती थी कि वो भला आदमी कौन है जिसने गरीब की बेटी को शादी करके अपने साथ रखा हुआ है। मारिया ने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, कभी दिखा दूंगी उनकी तस्वीर, फिलहाल मेरे पास नहीं है। उसका ये जवाब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। एक बीवी जिसका शौहर बाहर के मुल्क में रहता हो और उसके पास अपने शौहर की कोई तस्वीर ना हो, ये बात मेरे लिए नाकाबिले फ़हम थी। लेकिन जब मारिया ने उस बारे में मज़ीद कुछ ना बताया तो मैंने खुद को रोक लिया। दिल में सवाल तो बहुत से थे, लेकिन उनके जवाब जानने की हिम्मत मुझ में न थी। ये सब कुछ देखकर मैंने खुद से कहा कि शायद मुझे उन बातों के पीछे की हकीकत जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मारिया के रवैये और उस घर की अनकही कहानियों ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। महीने में एक दफ़ा मैं मारिया के घर से छुट्टी लेकर अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौट जाती थी। वही मेरा छोटा सा कमरा, जिसकी दीवारें बोसीदा थी और पुरानी जान पहचान वाली औरतों का बसेरा था, जिनके साथ मैं पहले काम करती थी। जब मैं उनसे मिलती और उनके साथ बैठकर मारिया की कहानी सुनाती तो वो हैरत में डूब जाती। एक दिन मेरी एक पुरानी दोस्त शकीला, जिसकी ज़ुबान हमेशा बेधड़क चलती थी, बोली, मैमूना, ये वही मारिया है ना जो पहले हमारे साथ रहती थी? मैंने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, वही मारिया। शकीला ने हैरानी से कहा, पर कैसे? मारिया तो इतनी खास नहीं थी, न शक्लो सूरत की अच्छी, न बातों की, और वजन तो उसका इतना ज्यादा था कि चलते हुए जमीन भी थर थर कांपती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी किस्मत यूं खुल गई? दूसरी औरत भी हमारी बातों में शामिल हो गई। कोई कह रही थी कि शक्लो सूरत को तो छोड़ो, मारिया के इखलाक भी कुछ खास नहीं थे। वो तो हमेशा दूसरों से लड़ झगड़ती थी। एक और औरत बोली कि शायद मारिया ने किसी दूसरे तरीके से शादी की हो। मैंने चौंक कर पूछा कि दूसरे तरीके से क्या मतलब? शादी तो निकाह से होती है। और मर्द के दूसरे तरीके से क्या मतलब? शादी तो निकाह से होती है और मर्द अपनी मर्जी से औरत को अपनाता है। उसने कोई जबरदस्ती तो नहीं की होगी? शकीला ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैमूना, तुम बहुत सीधी हो। अमीर लोग किसी पर तर्स खाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर शायद किसी मतलब से। मुझे ये बातें सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, देखो, मैं नहीं जानती कि मारिया की शादी किस तरह हुई, लेकिन एक बात तय है कि किसी ने उससे निकाह किया है और अच्छी नीयत से ही किया होगा। अमीर लोग बेवकूफ़ नहीं होते। अगर उसका शौहर उसे अपने घर लेकर आया है और उसका इतना ख्याल रखता है तो ज़रूर मारिया में कुछ तो ख़ास होगा। शकीला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ख़ास? वो मारिया? अगर ख़ास बात है तो वो सिर्फ ये है कि वो औरत है, पर तुम ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें ज़्यादा कशिश है, फिर भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली। मैंने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, उसने मुझे अपने घर में जगह दी है, मुझे एक आसान काम दिया है और मेरी ज़िंदगी में सहूलतें पैदा की हैं। मुझे इन बातों पर शुक्रगुजार करना चाहिए, ना कि उसकी बुराई करनी चाहिए। शकीला कुछ देर खामोश रही, फिर हंसकर बोली, चलो, जो भी है, पर यह मानना पड़ेगा कि उसने तेरे लिए अच्छा किया। ये बात सच थी। मारिया के घर में रहकर मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ आई। मैं अब सफाई, बर्तन और कपड़ों का काम नहीं करती थी। मेरा काम बस खाना बनाना था, और वो भी सिर्फ मारिया और कभी कभार उसके शौहर के लिए। ये काम ना सिर्फ आसान था, बल्कि मुझे वक्त भी मिलता था कि अपनी देखभाल कर सकूं। मारिया ने मुझे अपने पुराने कपड़े भी दे दिए, जो देखने में बिल्कुल नए लगते थे। वो कपड़े बहुत नफीस थे और मुझ पर खूब जचते थे। उन कपड़ों ने मेरी शख्सियत में
एक नया निखार पैदा कर दिया। मारिया का घर हमेशा चमकता दमकता रहता और उसके चेहरे पर खुशी की झलक हमेशा नुमायां होती। जाहिर है वो खुश थी, क्यों जिंदगी ने एक ऐसा रुख लिया था जिसका हम जैसे लोगों ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। लेकिन कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि मारिया के मिजाज में अजीब सी तब्दीलियां आ रही हैं। वो जो हमेशा मुतमिन और बेफिक्र नजर आती थी, अब किसी गहरी परेशानी में मुब्तला लग रही थी। मैंने उसकी परेशानी की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा खुश न थी। अलबत्ता घर के माहौल में एक तब्दीली वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। एक नया शख्स अक्सर मारिया के घर आने लगा। वो मर्द शक्ल सूरत से हमारे तबके का लगता था। उसके कपड़े और अंदाज भी मामूली थे। कोई इमारत या शान शौकत का निशान नहीं था, लेकिन उसका आना जाना बढ़ गया था और वो मारिया से अक्सर तन्हाई में मिलता था। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये मारिया के शौहर का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन जल्द ही ये ख्याल दिल से निकल गया। मारिया की ज़िंदगी में जहाँ तक मुझे इल्म था, उसके शौहर के अलावा कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं था। उसके माँ बाप पहले ही वफ़ात पा चुके थे और उसका कोई भाई या बहन भी ना था। तो फिर ये आदमी कौन था? मेरी तरह घर में काम करने वाली दूसरी नौकरानी ने एक दिन आकर कहा, मैमूना, ये आदमी बड़े साहब तो नहीं है? मैंने हैरानी से कहा, फिर कौन है? उसने कंधे उचकाकर कहा, यही तो पता नहीं, पर उसके आने जाने से लगता है कि मारिया के लिए ये खास है। मैंने उसे टोका, तुम ऐसा मत कहो, मारिया बहुत अच्छी औरत है। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन दिल में एक सवाल उठा, आखिर ये शख्स कौन है? मैंने कई दिनों तक ये बात दिल में रखी। मारिया की खुशियां देखकर मुझे कभी ये पूछने की हिम्मत ना हुई कि वो आदमी कौन है, लेकिन अब उसकी हालत देखकर मेरे दिल में फिक्र पैदा होने लगी। मारिया दिन ब दिन ज़्यादा परेशान और बेचैन हो रही थी। वो अक्सर घर से बाहर जाने लगी, कभी अचानक किसी पार्लर में तो कभी किसी और जगह। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि वो अपने फ़ोन पर किसी से लंबी बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ ऊंची थी और वो बार बार किसी से लंबी बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ ऊंची थी और वो बार बार रो पड़ती थी। मैंने उसे किचन के पास खड़े देख लिया और वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि उसकी मुश्किल आसान हो, लेकिन मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। एक दिन जब वो बाहर जाने लगी तो मैंने हिम्मत करके कहा कि बाजी, क्या आप ठीक हैं? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली कि हाँ मैमूना, मैं ठीक हूँ। बस कुछ बातें हैं जो मुझे अकेले ही संभालनी हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल कट रहा था। वो जो पहले मुतमिन और खुश रहती थी, अब अंदर से टूटी हुई लग रही थी। मैं जानती थी कि कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो उसकी ज़िंदगी को हिला रहा है, लेकिन वो मुझसे शेयर करने को तैयार न थी। फिर एक दिन मैंने उसे आईने के सामने खड़े देखा। वो बार बार अपना मेकअप ठीक कर रही थी, अपने बालों को संवार रही थी और ख़ुद को तैयार करने में मसरूफ़ थी। उसके दिल में कोई बड़ी तकलीफ़ छुपी हो। मैंने एक बार फिर पूछना चाहा, लेकिन खुद ही रुक गई। मुझे लगा कि शायद वो खुद ही वक्त आने पर सब कुछ बता देगी। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी में जो अच्छाइयाँ की थी, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया था। लेकिन जब तक वो खुद ना बताए, मैं उसकी मदद कैसे कर सकती थी? मुझे उसकी ज़िंदगी के बारे में जो जानकारी मिली थी, उससे अंदाज़ा हुआ था कि वो शायद किसी बड़ी आजमाइश से गुजर रही है। लेकिन क्या ये आजमाइश उस आदमी से जुड़ी हुई थी जो उसके घर आता था, या ये किसी और वजह से थी? ये सब जानना अभी मेरे लिए मुमकिन ना था। उस वक्त बस इतना मालूम था कि मारिया अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी थी और मैं उसके लिए कुछ करने की कोशिश में बेबस थी। मारिया ने उस दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया तो उसका चेहरा कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो हमेशा की तरह एतमाद से भरपूर और खुश नज़र नहीं आ रही थी। उसका लग रहा था वो हमेशा की तरह एतमाद से भरपूर और खुश नज़र नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी जो मुझे महसूस हुई। जब उसने कहा कि उसका शौहर बाहर के मुल्क से वापस आ रहा है, तो मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने फ़ौरन कहा कि ये तो बड़ी खुशी की खबर है बाजी, आपने तो इतना अरसा उनका इंतज़ार किया है। अब जब वो आ रहे हैं तो घर में जश्न होना चाहिए। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे कहने वाली है कि मैं उनके शौहर के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊं, क्योंकि अमीर लोग खाने पीने में बहुत नाजुक होते हैं। मैंने फ़ौरन कहा कि बाजी, फिर मुझे खाने की लिस्ट दे दीजिए ताकि मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूं। आपके शौहर के आने पर सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए।
लेकिन मारिया ने मेरी बात सुनकर सर झटका और कहा कि खाने को दफ़ा करो मेमूना, इस बार मुझे तुमसे खाने नहीं बनवाने, एक और काम है, बहुत ज़रूरी काम। ये सुनकर मैं हैरान हुई। मारिया ने हमेशा खाने की बात को अहमियत दी थी और आज वो कह रही थी कि खाने को दफ़ा करो। मैंने तजस्सुस से पूछा कि कैसा काम बाजी? मारिया ने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ किया, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो, और फिर बोली, मैमूना, तुम्हें शायद समझ ना आए, लेकिन देखो, हम लोग गरीब हैं। गरीब पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। लेकिन अमीर लोग, उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है। उनकी एक ख़ास किस्म की नफ्सियात होती है। वह सिर्फ अपनी खुशी, अपनी मौज मस्ती की फ़िक्र करते हैं। उन्हें दुनिया की दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। मैं मज़ीद हैरान हो गई। मैंने पूछा कि बाजी, आप कहना क्या चाहती हैं? आपका शौहर इतना बड़ा घर देकर गया है, आपने घर को बहुत अच्छे तरीके से रखा है और आप खुद भी इतने अच्छे तरीके से रहती हैं। खाने पीने का शौक है, वो भी मैं पूरा कर दूंगी। फिर और क्या करना है? मारिया ने मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांप लिया, जैसे कोई बहुत बड़ी बात सोच रही हो। फिर उसने अपने हाथ हटा। मैमूना, तुम समझ नहीं रही, बात कुछ अजीब और मुश्किल है। अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें बताऊंगी, वरना नहीं। मैंने फौरन कहा, बाजी, मैं तो आपकी मदद ज़रूर करूंगी। आपने मेरी कितनी मदद की है और मुझे यहाँ काम करते हुए 6 महीने हो चुके हैं, और आपने मुझे हमेशा वक्त पर पैसे दिए। आप जो खुद खाती हैं मुझे भी वही खिलाती हैं। कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया, न कभी मुझ पर सख्ती की। अब अगर मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला है तो मैं क्यों पीछे हटूंगी? आप बताएं, आपको क्या चाहिए? मारिया ने फिर कुछ देर सोचा, जैसे ये फैसला करना चाह रही हो कि मुझ पर भरोसा करे या नहीं। फिर वो बोली कि मेमूना, ये बात आसान नहीं है, एक बार और सोच लो। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को देख लूंगी। लेकिन अगर तुम वादा करो कि जो भी मैं कहूँगी वो तुम करोगी, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी। वो हमेशा मेरी मददगार रही थी, सकती थी। मैंने पूरे दिल से कहा कि बाजी, मैंने सोच लिया है, आप मुझसे जो भी काम कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। बस आप बताएं कि बात क्या है। ये सुनकर मारिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल पर रखा कोई बोझ हल्का करने वाली हो। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, देखो, बात यह है कि मेरा शौहर, वो बहुत मुख्तलिफ किस्म का इंसान है। वह सिर्फ इस दुनिया के हालात की वजह से मेरे साथ है और उसका दिल कहीं और होता है। और जब वो वापस आता है तो मुझे उसे खुश रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने हैरत से पूछा कि बाजी, मतलब क्या वो आपसे खुश नहीं? आप तो उसके लिए सब कुछ करती हैं। मारिया ने अफसरदा हंसी के साथ कहा, खुश होना या ना होना ये अहम नहीं। अमीर लोग अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मेरा शौहर भी ऐसा ही है। इस बार वो आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ ठहरे और खुश रहे, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कि आप बस बताएं कि करना क्या है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कि आप बस बताएं कि करना क्या है, मैं तैयार हूँ। लेकिन मारिया ने अगला जुमला कहा तो मैं वाकई हैरान रह गई। मुझे लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो बात जो उसने कही, वो मेरे वहमो गुमान में ना थी। जब मारिया मुझे अपने कमरे में बुलाया और संजीदगी से कहा कि वो कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है, तो मैं पहले तो समझ नहीं सकी कि वो इतनी परेशान क्यों है। उसके चेहरे पर खौफ, उलझन और घबराहट के आसार नुमाया थे। वो मुसलसल अपने हाथों को मरोड़ रही थी और नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो या किसी के आने का डर हो। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। बाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जो भी मसला है बताएं, हम कोई हल निकाल लेंगे। मारिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, देखो मेमूना, ये बात आसान नहीं है और शायद तुम समझोगी भी नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरी मदद ना की तो ये जो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा वक्त आया है वो ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे हाथ से ये नौकरी चली जाएगी और मेरे हाथ से मेरा शौहर। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके शौहर तो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके लिए इतना बड़ा घर छोड़कर गए हैं, फिर ये सब क्यों होगा? मारिया ने मुझे संजीदगी से देखा और कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मेरी बात मानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सब खत्म हो जाएगा। मैं उलझन में पड़ गई। दिल में खौफ और तजस्सुस एक साथ बढ़ने लगा। मैंने दबे लहजे में पूछा कि बाजी, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? वाज़ेह तौर पर बताएं ना।
मारिया ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बात कही जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। तुम्हें मेरे शौहर की दुल्हन बनना होगा। मेरे दिमाग ने फ़ौरन इस जुमले को रद्द कर दिया। मैंने बेयकीनी से कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं बाजी? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? हलचल मच गई। मैंने हमेशा यही सुना था कि औरत चाहे अमीर हो या गरीब, बदसूरत हो या खूबसूरत, वो अपना शौहर कभी किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। लेकिन यहाँ मारिया खुद अपनी ज़ुबान से ये बात कर रही थी कि मैं उसके शौहर की दुल्हन बन जाऊँ। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। मैंने लरजती आवाज़ में पूछा कि बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने शौहर की शादी मुझसे करवाना चाहती हैं? मारिया ने थोड़ा गुस्से और थोड़ी सी बेबसी के साथ कहा कि शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन जो तुम समझी हो मैं वही चाहती हूँ। देखो, बात यह है कि मेरा शौहर वो एक मखसूस किस्म का इंसान है। वह सिर्फ यहाँ आता है वक्त गुजारने के लिए, और इस बार जब वो आ रहा है तो मुझे उसे खुश करना होगा, और उसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए। मैंने कांपती आवाज़ में कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं बाजी? ये सब क्या हो रहा है? मारिया ने धीरे से कहा कि देखो मैमूना, ये सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए भी है, और अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। लेकिन एक शर्त है, ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें ये घर छोड़ना होगा और कहीं चले जाना होगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी दुनिया बदल गई हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और मारिया मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही है। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कहा कि बाजी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप अपने शौहर को किसी और के साथ बांटना चाहती हैं? ये कैसे मुमकिन है? मारिया ने मायूसी से कहा कि तुम्हें ये सब समझाना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं मजबूर हूँ, और मेरा शौहर यहाँ आया तो उसे खुश रखना होगा, और उसके लिए तो मेरी मदद करोगी तो ये सब कुछ ठीक रहेगा, वरना ना तुम्हारी नौकरी रहेगी ना मेरा शौहर। मैंने बेबसी से कहा कि बाजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और आप मुझे वक्त दें, मैं सोचूंगी। मारिया ने थोड़ी सख्ती से कहा, वक्त है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन बाद वो आ रहा है, और तब तक तुम्हें फैसला करना होगा। ये कहकर मारिया कमरे से बाहर चली गई। मैं वहीं खड़ी रही जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हूँ। मेरे दिमाग में मारिया की बातें गूंज रही थी। तुम्हें मेरे शौहर की दुल्हन बनना होगा। ये जुमला बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी। मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान सा बरपा था। मारिया की बातों ने मुझे हिला कर रख दिया, और एक तरफ उसका कहना कि अगर मैं उसकी मदद ना करूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और दूसरी तरफ उसका ये कहना कि वो मुझे लाखों रुपए देगी। पैसे, ये लफ्ज़ मेरे दिमाग में अटक गया। मेरी गुर्बत, मेरे ख्वाब और एक बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश ने मेरे दिल को कमज़ोर कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मुझे एक साथ इतने पैसे मिल जाएं तो मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। किसी छोटे से गांव में जाकर एक घर ले सकती हूँ। अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हूँ। शायद किसी अच्छे इंसान से शादी भी कर सकूँ, लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा। ये सब गलत है, और ये काम ना सिर्फ गुनाह है बल्कि खुद को बेचने के बराबर है। क्या तुम अपनी इज्जत को सौदा करोगी? ये सोचकर मैंने अपने सर को जोर से झटकर कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन पैसों की चमक ने फिर मेरे दिल को बहकाया। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मारिया ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया। अगर वो अपनी मजबूरी की वजह से तुमसे ये मांग रही है तो क्या तुम इनकार कर सकती हो? रात भर मैं सोचती रही। कई बार दिल चाहा कि भाग जाऊं, लेकिन फिर गुर्बत का खौफ और पैसों की कशिश मुझे रोक लेती। सुबह हुई तो मैंने फैसला कर लिया। मैं मारिया के पास गई और कहा कि बाजी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर मारिया के चेहरे पर अजीब सी खुशी छा गई। उसने कहा कि तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, ज़रूर मिलेगा। जब मैंने मारिया से कहा कि मैं इसकी बात मानने को तैयार हूँ तो वो खुशी से ऐसे उछली जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मैं हैरान थी। वो मुझे अपनी सौतन बनाने जा रही थी, जो कि किसी भी औरत के लिए एक अजीब और मुश्किल बात है, लेकिन उसकी खुशी की इंतहा ही न थी। मेरे दिल में सवालात उभरने लगे कि आखिर वो इस कदर खुश क्यों है। क्या वाकई ये सब उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी थी, या उसके पीछे कोई और बात थी? मारिया ने फौरन कहा कि मेरे साथ चलो, हमें अभी बहुत काम करना है। उसने मेरी कलाई पकड़ी और पार्लर ले गई।
وہ ہر چیز کا اتنا دھیان رکھ رہی تھی جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ پارلر میں پہنچتے ہی اس نے ہدایت دی کہ میرے بالوں کو ایک خاص انداز میں کاٹا جائے جو میرے چہرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنائے۔ پھر میرے چہرے کا مکمل میک اپ کیا گیا جس نے مجھے آئینے میں ایک مختلف شخص دکھایا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ میرے سب کچھ بہت ہی نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ماریا میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو میمونہ، ویسے تو تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، لیکن آج تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگنا ہوگا۔ اس نے میری خوبصورتی پر ایک لمحے کے لیے رشک بھری نظر ڈالی، لیکن اس کے فوراً بعد وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ اس نے میرے لیے بہترین کپڑے خریدے جو نہایت قیمتی لگ رہے تھے۔ ان کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے بھی لیے اور مجھے ہدایت دی کہ میں ان سب میں بے حد شاندار لگوں۔ میں نے خود کو پہلی بار اس طرح کے کپڑوں میں دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی خوف کا احساس بھی تھا کہ میں کس کام کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ماریا نے مجھے اپنے شوہر محمد اعظم کے بارے میں بتایا۔ محمد اعظم باہر کے ملک میں بزنس کرتا تھا۔ وہ بہت امیر اور کامیاب آدمی ہے، لیکن اس کی نفسیات تھوڑی مختلف ہے۔ وہ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنا پسند کرتا ہے۔ تمہیں اسے خوش کرنا ہوگا اور تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ اور مجھے دکھائی۔ تصویر زیادہ واضح نہ تھی، لیکن ایک وجیح مرد کی جھلک ضرور نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دل میں کئی خیالات آنے لگے۔ کیا یہ سب کچھ واقعی میرے لیے ٹھیک ہوگا؟ کیا میں اپنے ضمیر کے ساتھ سمجھوتا کر سکتی ہوں؟ لیکن پھر پیسوں؟ ہاں، پیسوں کے بارے میں سوچتے ہی میرے اندر کی تمام الجھنیں اور سوالات کسی حد تک دب گئے۔ ماریا نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے انعام کے ساتھ آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا اور بس سر ہلا دیا، لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی یہ سب میرے لیے ٹھیک ہوگا؟ رات کا وقت قریب آ رہا تھا اور ماریا نے مجھے مزید ہدایات دی۔ دیکھو، جیسے ہی اعظم کمرے میں داخل ہوگا میں اسے سرپرائز دوں گی۔ تم باتھ روم میں رہو اور میرا اشارہ سننا۔ جب میں ہلکے سے دروازے پر دستک دوں گی تو تم باہر آ جانا۔ میں نے ماریا کی باتیں خاموشی سے سنی اور دل میں خود کو تیار کرنے لگی۔ اس نے مجھے خوب اچھی طرح تیار کروایا۔ وہ بار بار میرے لباس اور میک اپ کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کچھ بھی غلط ہونے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رات بہت اہم ہے اور سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں باتھ روم میں کھڑی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنا عکس اجنبی سا لگ رہا تھا، اور وہ میمونہ جو چند ماہ پہلے ایک غریب سیدھی سادی لڑکی تھی اب ایک شاندار لباس میں دلہن کی طرح تیار کھڑی تھی۔ لیکن یہ سب کس کے لیے تھا؟ کس قیمت پر؟ میرے دل میں سوالات کی ایک دنیا تھی، مگر میں نے انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کمرے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی اور اعظم گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ، ماریا کی خوش آمدید کہتی آواز اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا ماریا واقعی خوش ہے یا وہ صرف دکھاوا کر رہی ہے۔ چند منٹ بعد ماریا کی آواز خاموش ہو گئی اور پھر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ یہ وہ اشارہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جب میں باتھ روم سے باہر نکلی تو کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے مجھے نظر انداز کیا اور یہ کسی حد تک مجھے مزید متذبذب کر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اعظم صاحب ہی ہوں گے جو ماریا کے شوہر ہیں، مگر میں پوری طرح سے پکا نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور خود کو متعارف کرانے لگی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ میری طرف تو دیکھ رہا تھا مگر گہری خاموشی میں ڈوبا تھا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے ملنے کے لیے درخواست کی تھی، میں نے کہا، لیکن اس کا جواب نہ آیا۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسی گہری انکہی بات چھپی تھی جس کا مجھے فوراً اندازہ نہ ہو پایا۔ اس کے ساتھ کچھ تھا جو مجھے کچھ عجیب لگا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا وہ بستر پر گر گیا اور اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی تصویریں پورے گھر میں لگی ہوئی تھی اور ایک بوڑھا آدمی جس کا چہرہ تصویروں میں نظر آتا تھا۔ میں حیرانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔
میں سوچنے لگی کہ اگر یہ اعظم صاحب تھے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ماریا نے ان سے شادی کی تھی؟ یہ بوڑھا آدمی اور ماریا کا اتنا بڑا فرق تھا۔ اس سے پہلے کہ میری نظریں اس کی حالت کو مزید تفتیش کرتی، ایک سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ اعظم صاحب تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ماریا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں اور اس کے باوجود اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے میری مدد چاہتی ہے۔ تب مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ کیوں اپنا شوہر میرے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ دراصل اعظم صاحب سے میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، بلکہ ان سے بھاگ کر ان کی زندگی ختم کر کے خود سب کچھ اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں اس کی باتوں میں آئی۔ اتنی بڑی چالاکی سے وہ مجھے پھانس کر ساری دولت، زیورات اور پیسوں کی ملکہ بننا چاہتی تھی، اور میں تو بس اس کی چکنی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کے سب سے بدترین فیصلے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ میرے دماغ میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ مجھے یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، لیکن میں جتنی جلدی اپنے قدموں کو بڑھا رہی تھی اتنی ہی تیز رفتار پولیس میرے پیچھے آ پہنچی۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، پولیس والوں نے مجھے گھیر لیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ پولیس نے فوراً مجھے گرفتار کر لیا اور مجھ پر الزام تھا کہ میں ہی ماریا کے ساتھ مل کر یہ سارا دھندا چلا رہی تھی۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن پولیس نے میری ایک نہ سنی۔ اور پھر حیرانی کا ایک اور لمحہ آیا جب سارے گھر کے نوکروں نے بھی میرے خلاف بیان دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہی وہ شخص تھی جس نے ساری سازش رچائی اور ماریا کے ساتھ مل کر زیورات اور پیسوں کا دھندا کیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے خلاف جا رہا تھا اور میں صرف گنگ ہو کر رہ گئی۔ میرے دماغ میں ایک سرد ہوائیں چلنے لگی۔ کیا واقعی میں اس قدر بدقسمت ہوں کہ اتنی چالاکی سے مجھے پھنسا لیا گیا؟ ماریا نے مجھے اپنے راستے پر اس لیے لایا تاکہ وہ میرے ہاتھوں سب کچھ چھین کر چلی جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں تاکہ پولیس اس کے پیچھے نہ جا سکے، اور یہی وہ حقیقت تھی جس سے میں انجان تھی۔ ترتیب دیا کہ مجھے اس کے جال میں پھنسنے سے بچنے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ ماریا نے ہمیشہ اپنی چمکدار باتوں اور وعدوں کے ذریعے مجھے بہکایا تھا، اور جب میں اس کے ساتھ جڑ چکی تھی اس نے مجھے اس قدر گہرے دکھ میں دھکیل دیا کہ اب میں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں اس کے ساتھ کی جانے والی تمام تر غلطیوں کا بوجھ تھا، اور پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ سب کچھ میرے لیے سبق تھا۔ ماریا کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت، پیسے اور جائیداد لے کر کہیں دور جا چکی تھی، اور میں اس کا ایک اور شکار بن چکی تھی۔ یہ سب کچھ ایک چالاک کھیل کی طرح تھا جس میں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اب اس کے نتائج کے طور پر میں گرفتار تھی اور ماریا آزاد تھی۔ جب پولیس نے مجھے گرفتار کیا، میں نے انہیں بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ سب ماریا کا کیا دھرا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ ماریا نے مجھے جھوٹ بول کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اور اس کا شوہر تو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اگر ایسا تھا تو پھر وہ کہاں گئی، وہ کہاں ہو سکتی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اگر وہ سب کچھ سچ تھا تو پھر ماریا کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اکیلی ہی پورے گھر کی مالک تھی۔ اس کا شوہر جو بھی تھا اس نے اسے سب کچھ سونپ دیا، اور وہ خود خرچوں کی ذمہ داری اٹھاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو وہ یہاں موجود ہوتی، اور اگر کچھ غلط تھا تو یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے۔ پولیس کے اس رویے نے میری پریشانی کو اور بڑھا دیا۔ وہ مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ میں ہی سب کچھ کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ ماریا کا منصوبہ تھا۔ وہ مجھے جانتی تھی اور اس نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ وہ جو شخص گھر آتا تھا وہ ماریا کا عاشق تھا، اور ماریا نے اپنے شوہر سے جان چھڑوا کر اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا خواب دیکھنا شروع کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ماریا نے سب کچھ اچھی طرح چاہا۔ اس کا شوہر جو کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، اور ماریا نے اپنے نئے محبوب کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنے خوابوں کی تکمیل کی تھی، اور وہ پیسوں کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ لے کر کہیں دور بھاگ چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر اس کے ساتھ اس دولت اور جائیداد کا استعمال کرنے والی تھی۔ اب میں یہاں جیل میں ہوں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر یہ کہانی سنا رہی ہوں۔
जब मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं किस बात की सज़ा भुगत रही हूँ। शायद मैं सज़ा पा रही हूँ, लेकिन किस बात की? क्या लालच की? क्योंकि मैं भी तो गलत काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मारिया की चमकदार बातों में आकर मैंने भी उस गलत रास्ते का इंतखाब किया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं यहाँ हूँ। मेरा दिल अब भी भर आया है, और मुझे लगा कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मुझे नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन जेल की उन सुलाखों के पीछे बैठकर मेरी नज़र में एक सबक था। वह सबक ये था कि कभी भी लालच में आकर अपने असूलों और इक़दार से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपना रास्ता खो बैठता है तो वो फिर ऐसी सूरत हाल में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है, और मेरी आंखों में माज़ी की झलकियाँ फिर से दौड़ रही हैं। मारिया की चालाकियों ने मुझे कैसे फांस लिया, और अब मैं इस जेल में बंद हूँ। सोचती हूँ कि अगर मैंने उस वक्त होशमंदी दिखाई होती तो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।